Okay. So search करने के लिए again we need to create one separate page in this case. So I'll create a separate HTML page. Put it in the same templates folder. Say search student.html. Normal HTML structure. Search student. And you can actually take those bootstrap classes from here. Paste it. Okay. Like whenever you create a new HTML page, immediate or put basic things. Say h3. And as I told you, whenever you add this message ka variable bhi add karo because that is required in all the pages in this case. So I will add center tag. Inside center tag, I will use h4. h4 के अंदर put msg. Okay. That is now from now onwards, whenever you create a page, you have to immediately write this particular line also in this case. तो एक HTML पेज क्रिएट करते हो immediately you should go to urls.py, add a new path separated by comma, add a new path. path के अंदर डबल कोटेशन search student. आपका HTML पेज जो नाम दिए सेम नेम दो so that there won't be much confusion to remember multiple names in this. And उसी नाम पे views.py, views.function name followed by name is equal to search student and separated by comma. So second thing, whenever you create a HTML page, the next thing we do is the add the path. उसके बाद immediate you should go to the views.py and write a function to search. Say def same function name request colon msg बोल के एक वेरिएबल रहेगा और कुछ चाहिए तो बाद में डिक्लेयर करेंगे रिटर्न रेंडर ओपन क्लोज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कॉमा पेज का नाम कॉमा एंड msg तो हमेशा रहेगा फॉर एनी फंक्शन दिस वो पैरामीटर पास करना मैसेजेस कंपल्सरी इन दिस सो आई कीप दैट आल्सो एंड नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम इन दिस केस so let me open up one more window localhost colon 8000 search student खाली पेज आएगा. Now I want to search a student based on the name in this case क्योंकि कॉलेज नेम पे सर्च करें तो सबका कॉलेज का डेटा आएगा. दैट इज मोर डेटा इन दिस. इफ आई सर्च बेस्ड ऑन मोबाइल नंबर कुछ लोगों को याद रहता है कुछ लोगों को नहीं रहता है. से इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन स्टोर्ड आपके पेरेंट्स फीस पे करने आते हैं सो दे डोंट रिमेंबर योर मोबाइल नंबर फिर उनके मोबाइल में चेक करके आपको बोलना. इंस्टेड ऑफ दैट नेम पे सर्च करेंगे तो ऑफकोर्स एवरी पेरेंट्स नो देयर चिल्ड्रन नेम इन दिस केस. So name search would be a best option in this case. So what I will do is inside this HTML page, I will create an option where I will take a name from the user. एक text box डालेंगे उसके अंदर user के पास से name लेना. So go to the student search student. Inside this put a form tag. Form name is equal to search student. Method is equal to post and autocomplete will be off and close the form. Okay. When I have seen you people writing कि form tag लिखोगे इसके बाद next क्या भी वो लिखोगे उसके बाद form tag close कर रहे हो, that should not be done. तब तक वो भूल जाते हो tag क्या open किए थे बोल के. So it is immediately when you open a tag उसको पहले क्लोज करो बाद में उसके अंदर आके कोड लिखना. दिस इज द रीजन व्हाई आई राइट ऑल द प्रोग्राम्स ऑन द बोर्ड. नहीं तो आई हैव रिटन दिस सर्च कोड नॉट लेस देन 50 टाइम्स इन दिस केस. तो वही पीपीटी में डाल के दिखा सकता था. व्हाई आई राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज यू शुड नो हाउ आई एम टाइपिंग द टैग्स इन दिस केस. सो इनसाइड दिस वी विल मेक यूज ऑफ द सेम टेबल टैग यूज करेंगे. आई विल यूज अ टेबल टैग इन दिस. टेबल के अंदर आई विल यूज अ टीआर के अंदर एक टीडी. इन दैट टीडी आई विल टेक अ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. सो इनसाइड दिस आई विल से इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम. से ऑटो फोकस इसके अंदर आना चाहिए.
So autofocus equal to on, and placeholder say enter student name, compulsory field है, so required. Okay. Pattern property also you can give in this case. So pattern में he can type A to Z, capital A to capital Z. He can type dot. He can type space. And minimum एक character डाले तो भी you have to bring the data in this. If he says A, all the data from A should be retrieved. किसी का नाम A है तो it should bring. So minimum is 1 character, maximum you can give 100 characters. 100 character तक वो सर्च कर सकता है. सेव करो, रिफ्रेश, यू गॉट अ टेक्स्ट बॉक्स. तो सेंटर में आना चाहिए सर. वेरी सिंपल. यूज अलाइन सेंटर. अलाइन बोल के एक प्रॉपर्टी आता है that will bring the table in the center tag in this. सेव करो, रिफ्रेश, the table is in the center. बॉक्स अच्छा नहीं दिख रहा है because you have not put the class form control. तो क्लास डालोगे तो थोड़ा क्लास स्टैंडर्ड उसका बढ़ जाएगा. Then I need one button beside to click on that to fetch the data. Very simple. और एक TD यहाँ पे लिखो. In that I will make use of input type is equal to submit. Name is say BTN search. Value is equal to get data. Okay. And then use a class. Class को कौन सा यूज करोगे? Don't use BTN success because BTN success when you are storing the data वो उसके लिए यूज हो रहा है. तो use either go for BTN primary or use info. So I'll go with class BTN. Save करो, तो बाजू में बटन आ गया. When I search a particular name, get data बोल के लिखता हूँ, it should bring me and display the student data in this case. Student data display करने के लिए we have already written the code in the previous HTML page. यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट का डेटा लिखने के लिए वी हैड रिटन द कोड. सेम कोड काम आएगा. कॉपी करो, पेस्ट करो बस. ओके, बिकॉज डिस्प्ले कोड रिमेन्स द सेम इन दिस. सेव करो एंड रिफ्रेश द वेब पेज. ऑफ कोर्स कोई डेटा नहीं है, वो गैप चाहिए. यू कैन यूज अ ब्रेक टैग इन दिस और यू कैन मेक यूज ऑफ MB और MT विच एवर यू वांट. तो थोड़ा गैप आएगा. When I type a name here, get data click करता हूँ, it should display me the data. Of course, this message is because form tag जब भी आप यूज करते हो compulsory CSRF underscore. Okay, उसके फिर और एक बार execute कर लो. Now when I type a name, click on get data. It will go to the same search student in this. वहां पे you have to retrieve the data based on the name. Okay, so we have written a function for that जो खाली है. Go to views here. अब submit click करके आ रहे हो यहाँ पे input type submit. So what I have to do is if request dot method double equal to post, because वहां से कुछ value आ रहा है, means compulsory that should be written inside the if condition. Okay, जैसे हमने save page में किया था, वहाँ पे डेटा टाइप करके यहाँ पे आए थे, तो वी हैड रिटन दैट कोड इनसाइड request dot post equal to request dot method is equal to post. I will fetch whatever the name that he has typed in the text box. Say I'll call it as search name is equal to request dot post स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिए वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम से वहां पे विवेक बोल के टाइप किया है. इट शुड ब्रिंग दैट एंड कॉपी दैट नेम इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. डेटा है कि नहीं चेक करना. हाउ टू चेक इट? वेरी सिंपल. इफ स्टूडेंट रजिस्टर डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर. लास्ट टाइम हमने ऑल बोल के फंक्शन दिया था बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग ऑल द डेटा, लेकिन यहाँ पे आई वांट टू स्पेसिफिकली ब्रिंग अ पर्टिकुलर डेटा. वी मेक यूज ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड एज फिल्टर. फिल्टर में क्या करता हूँ, हियर आई विल से models.py में जो भी नाम दिए स्टूडेंट नेम
इक्वल टू सर्च नेम. सर्च नेम यहाँ पे है. Got it? So what I am telling is स्टूडेंट रजिस्टर में स्टूडेंट नेम जो सर्च नेम में दिया वो है कि नहीं चेक करो बोल के. सो फॉर दैट डॉट एग्जिस्ट. अगर है तो एक वेरिएबल में उसका डेटा रिट्रीव करो. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, वेरी सिंपल, स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी एंड इसके अंदर स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू ऊपर जो भी कंडीशन दिए थे सेम कंडीशन. अगर नहीं है इट विल कम टू द एल्स पार्ट. एल्स पार्ट में एमएसजी इज इक्वल टू रिकॉर्ड नॉट फाउंड. सेम एज व्हाट यू हैव डन इन दिस प्रीवियस फंक्शन. कंपेयर करो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन डिफरेंस. द डिफरेंस इज यहाँ पे हमने फिल्टर फंक्शन यूज किया है बिकॉज आई वांट टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा. यहाँ पे ऑल फंक्शन यूज किया है बिकॉज आई एम रिट्रीविंग ऑल द डेटा. ओके, जब आप यहाँ पे फिल्टर में स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव कर रहे हो, कौन से कंडीशन पे रिट्रीव कर रहे हो? द कंडीशन इज दैट स्टूडेंट नेम शुड बी द सर्च नेम. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एनी डाउट इन दिस? स्टूडेंट डेटा अगर है तो इसके अंदर कॉपी रहता है, इसको पास करो, दैट्स इट. और ये भी you have done this same, you have already written this when you are writing the display code, if you remember here. डिस्प्ले कोड में देखिए कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है. द ओनली फर्क इज टू डिफरेंट पेजेस. गॉट इट? सेव करो, रिफ्रेश द पेज. आई गॉट ऑल द डेटा इन दिस केस. आई वांट टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर डेटा, दैट इज आई वांट टू ब्रिंग सचिन. तो मैं क्या करता हूँ, सचिन, I'll bring only Sachin. I will bring Kiran's data in this case. Get data किया, it is showing me record not found. Clear with this point? Any doubt in this? No. लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है. The problem is when he says record not found, ये लाइन पे नहीं आना चाहिए. When the page is loaded for the first time, this line I don't want. अगर डेटा है तो वो लाइन के साथ दिखाना चाहिए, right? So one change in this when you are displaying the data. क्या change है? The change is very simple. This whole information, पूरा जो टेबल टैग है उसको हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डेटा बोल के हमने जो पैरामीटर पास किया था उसको इफ कंडीशन में डालो बस. इफ डेटा, that is the student data, put the table tag also inside that. And if condition open हो है तो उसको close भी करना चाहिए. How to close it? Simple, flower bracket percentage and if. क्या होता है, सेव करो, पेज इज लोडेड, नथिंग इज डिस्प्लेड बिकॉज द डेटा इज नॉट देयर. तो फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है, स्टूडेंट डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज एम्प्टी. सो दिस कंडीशन फेल्स. वो कंडीशन फेल हो गया, सो ही विल नॉट कम इनसाइड द इफ कंडीशन. तो वो हेडिंग भी नहीं दिखेगा. नाउ आई विल सर्च फॉर अ नेम, सचिन. Click on student data, it is showing me the row and the column in this. Because जब मैं सचिन बोल के टाइप किया, इट वेंट टू views.py. सचिन के नाम पे डेटा है कि नहीं चेक किया, वहां पे डेटा है. ही सेंट दैट डेटा इन द स्टूडेंट डेटा. तो जब आप स्टूडेंट डेटा में सेंड किए, दिस कंडीशन वाज ट्रू बिकॉज इट हैज अ डेटा. तो अंदर आया, ही डिस्प्लेड मी द हेडिंग एंड ही डिस्प्लेड मी द डेटा. क्लियर विद दिस? आई वांट टू सर्च किरण, नो रिकॉर्ड फाउंड. वो टेबल भी चला गया बिकॉज स्टूडेंट डेटा अभी खाली है. Got it? Now add one more student record in this. Yes, sir. Revan Munda surname Jora T full hello TNGLI. Say some mobile number 9876543210. Password I'll give REVAN college upper college search. That data is stored. Now I want to search his data in this case. So go to search student REVAN, click on get it. क्या दिखा रहे हैं? क्यों स्टोर नहीं किए? क्या स्टोर किए थे, लेकिन वहां पे
I gave Raven Tingley, बट इधर सर्च में क्या कर रहा हूँ, Raven बोल के क्लिक कर, I don't remember his full name in this case, right? Revantengal, record not found, क्यों? स्पेलिंग का स्पेलिंग कौन याद रखेगा? वो हिज रियल नेम इज रेवंत सिद्धप्पा, डबल डी है क्या सिंगल डी है पता नहीं, ओके? सो इमेजिन आप सबका नाम में कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. व्हेनेवर दे राइट माय नेम विवेक, वो वी ई के लिखते हैं, सम पीपल राइट लाइक दिस, ओके? तो वो मिस्टेक होने का चांसेस है. इसीलिए अगर मैं रेवन बोल के डालूं तो इट्स हिज नेम शुड बी डिस्प्लेड, VAN वैन बोल के डालूंगा तो भी उसका डेटा आना चाहिए, RE डालूंगा तो भी उसका नाम आना चाहिए. अगर ऐसा होना चाहिए तो a small change, that's it. सर्च करते वक्त अंडरस्कोर I कंटेन्स बोल के डालो बस. तो कॉलम का नाम जो models.py में है, अंडरस्कोर I कंटेन्स इन बोथ केसेस. मतलब I कंटेन्स बोलो तो जो भी आप टाइप किए स्टूडेंट नेम के अंदर वो कहीं पे भी मिलेगा तो फेच करो, डिस्प्ले करो. सर वो आई बोल के क्यों डाले? दैट इज इग्नोर केस. कैपिटल लेटर में स्टोर किया या स्मॉल लेटर में स्टोर किया नहीं मालूम, सो इवन इन सच केस वो कैपिटल में रहने दो या स्मॉल में रहने दो, इट शुड ब्रिंग द डेटा. सेव नाउ, आई टाइप द सेम REVAN, नहीं आया था लास्ट टाइम, गेट डिटेल्स, आई गॉट द डेटा. सिर्फ VI, I'll not put anything in this. I got all the Vivek. Sirf I got all the data because everybody's name has name this. Surname पे चाहिए TE, I'll get the data. सिर्फ G डालूंगा, I'll get the data. So I contains डालोगे तो you can search it in whichever method you want in this case. Understood this point? So this is how we retrieve the data and display it to the user. Okay. In terms of 5 minutes, sir.